Hello everyone. So till now we have studied three types of circuits. One is the LR circuit, RC circuit and the LC circuit. In these circuits we saw the cases of the if we have capacitor like RC or LC circuit, then we have seen the charging of capacitor and the discharging of capacitor case. And we had the LR circuit, then we studied the growth and decay of current in LR circuit. Now what we'll do now, instead of two components, either L, C or R, we'll have three components, both all L, C and R. Now in this circuit we have inductor, capacitor and resistor. All the components are connected in series, which is then connected to a cell of EMF E through a tapping key K. ठीक है, जैसे हमने पहले किया था LR सर्किट हमने लिया था, वो भी हमने ऐसे एक एक्सटर्नल सेल से कनेक्ट किया था, ऐसे ही हमने RC सर्किट के साथ किया था और ऐसे ही LC सर्किट के साथ किया था. अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो सर्किट है इट कंसिस्ट ऑफ all the three components L, C and R. ठीक है, and this derivation is very important from your examinations point of view. ठीक है, this is very important from your examinations point of view. क्या होगा, किस टाइप की इसमें शुरू में फिजिक्स लगेगी, वही जैसे पहले था. ठीक है, हम दो केसेस स्टडी करेंगे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर through R and L and then the discharging of capacitor through R and L. ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या है, when we press the key. Now what happens, this LCR, this is connected to a cell of EMF E through a key K. As we press the key, then the current will start flowing through the circuit. Because of the flowing of current, what happens to the capacitor? Capacitor जो है इसकी property है, जब current flow करेगा, it will start getting charged. And at any time जो इसकी potential difference होगी, let it be Q upon C by using the formula Q is equal to CV. Now what happens to the inductor? When current flows through the circuit, now current is increasing, so a induced EMF will be produced across the inductor from the Faraday's law of electromagnetic induction. ठीक है, और ये जो induced EMF है at any time t, let it be L di upon dt. और जो resistance है हमारा, उसके across जो potential होगी, that you already know from the very famous Ohm's law, V is equal to I R. So now how do we write the equation? जैसे हमने पहले किया था, जब हमारे पास LR सर्किट था तो हमने जो टोटल EMF E ऑफ द सेल था उसको लिया था EL प्लस ER. फिर हमारे पास जो सर्किट था उसमें R और C था, फिर हमने लिया था E इज इक्वल टू ER प्लस EC. ठीक है, फिर हमारे पास एक सर्किट आया था जिसमें हमने LC सर्किट लिया था, तो वहां हमारे पास E जो था वो क्या हो गया था, EL प्लस EC. अब ये जो हमारा सर्किट है, अब इसमें हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स है L, C एंड R. तो अब हमारा जो EMF जो है वो हो जाएगा EL प्लस ER प्लस EC. Now substitute the values of EL, ER and EC in this equation. So what we'll get, this one. E is equal to EL हमारा हो गया L di upon dt, ER हमारा हो गया IR, EC हमारा हो गया Q upon C. जैसे हमने पहले लिखी थी इक्वेशंस उसी तरीके से. Now what we'll do now, देखो इस इक्वेशन में कहीं तो हमारे पास चार्ज का कंपोनेंट है और कहीं करंट का कंपोनेंट है, तो इस इक्वेशन को हमें सिंगल कंपोनेंट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा. तो we'll put I to be equal to dq upon dt. So substitute I is equal to dq upon dt. Now what happens to this equation? It becomes R into, substitute I as dq upon dt plus Q upon C plus L into, अब ये second derivative बन जाएगा Q के terms में, d2q over dt square, and this is equal to capital E. Now divide this whole equation by R, नहीं sorry, divide this whole equation by L. d2q over dt square रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी d2q over dt square plus R upon L dq upon dt plus Q upon LC is equal to E upon
L, ठीक है, हमने जो सारी इक्वेशन थी उसको डिवाइड कर दिया बाय L, so we'll get this equation, ठीक है, and this derivation is very important from your examinations point of view. मैं दोबारा बता रही हूँ, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना और समझना है. सबसे पहले हमने क्या किया, we have used the equation E is equal to EL plus ER plus EC. We know the value of EL, we know the values of ER and EC also. Now substitute all the values in this equation and then make this equation in terms of Q. So we have to substitute current is equal to dq upon dt and then divide whole equation by capital L and we end up with the equation 4.24. ठीक है, हम स्टडी कर रहे हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. तो इसमें हमें क्या करना है फाइनली, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और Q की वैल्यू निकालनी है. ये हमारा मोटिव है इस डेरिवेशन में, टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज Q. वो हम कैसे निकालेंगे, उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें लेट्स से R अपॉन L को हमने कंसीडर किया 2B where B is any factor और 1 अपॉन LC को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एज K स्क्वायर. ये हमने क्यों किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. बार बार R अपॉन L या 1 अपॉन LC लिखने की बजाय you have to simply remember the substitution. और एक चीज मैं और बता दूं, ये जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का डेरिवेशन तुम लोग अभी सुनोगे, हो सकता है इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आए तुम्हें, ठीक है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है बट इम्पोर्टेंट है, करना है, ठीक है. लेकिन जब हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस करेंगे वो एग्जैक्टली सिमिलर डेरिवेशन है इसी तरीके से. तो जब हम डिस्चार्जिंग का केस करेंगे तो वहां पर अगर ये चार्जिंग वाले केस में कोई भी डाउट्स हैं तो उस डिस्चार्जिंग वाला केस करके सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और चीजें ढंग से समझ में आ जाएंगी, ठीक है. तो इसलिए साथ के साथ समझने की कोशिश करो इस डेरिवेशन को, पैनिक होने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए डिफिकल्ट है, नहीं तो डिफिकल्ट नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो जब हम डिस्चार्जिंग का केस करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो ये दो सब्स्टिट्यूशंस को याद रखना है इस इक्वेशन के बाद कि लेट R upon L is 2B and 1 upon LC is K square. So now substitute these values in equation 4.24 and what we'll get now, d2q over dt square, substitute R upon L as 2B plus 2B into dq upon dt plus substitute 1 upon LC as K square. So plus K square Q is equal to E upon L. ठीक है, so what we'll get, d2q over dt square plus 2b dq over dt plus K square Q is equal to E upon L. We have substituted R upon L as 2b and 1 upon LC as K square. ठीक है, now what we'll do now, take this E upon L to the left hand side. ठीक है, कैसे लेकर जाएंगे, देखो d2q over dt स्क्वायर प्लस 2b into dq over dt एज इट इज रहेगा. उसके बाद k स्क्वायर कॉमन लो और ब्रैकेट में फिर क्या आ जाएगा, q माइनस e अपॉन k स्क्वायर इंटू l इक्वल टू 0. ये जो E अपॉन L का कंपोनेंट है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे और K स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. देन वील टेक K स्क्वायर कॉमन और हमारे पास K स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में ये ब्रैकेटेड टर्म आ जाएगी, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी गेट द इक्वेशन 4.25. ठीक है, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी E is equal to EL plus ER plus EC. सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज EL की, ER की और EC की. फिर उसके बाद हमने पुट किया I is equal to DQ over DT. फिर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई Q के टर्म्स में. उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन किया R अपॉन L का 2B और 1 अपॉन LC का K स्क्वायर. वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई 4.25. ठीक है, तो अब तक हमने यहाँ तक किया. अब हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए.
इक्वेशन नंबर 24 को हम जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतने ही इजीली हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमें फाइनली निकालना क्या है, उस इक्वेशन की हेल्प से हमें क्यू निकालना है। तो उस इक्वेशन को हमें पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं, r अपॉन l को 2b, 1 अपॉन lc को k स्क्वायर, ये सारे हम सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन 24। तो उसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा वी गॉट द इक्वेशन 25। अब इक्वेशन 25 में हम क्या करेंगे, वील मेक वन सब्स्टिट्यूशन, लेट x इज इक्वल टू Q माइनस E अपॉन के स्क्वायर L। देखो अब इस सब्स्टिट्यूशन से ये इक्वेशन 25 कितनी सिंप्लीफाइड हो जाती है। x को हमने पुट किया Q माइनस E अपॉन के स्क्वायर अपॉन L। ठीक है, तो इस इक्वेशन में तो हमारे पास आ गया के स्क्वायर x। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट, अब d2q ओवर dt स्क्वायर क्या होगा या dq ओवर dt क्या होगा। ठीक है, देखो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx अपॉन dt मेरे पास क्या आ गया, dq अपॉन dt। सिंस e, k एंड l ऑल आर कांस्टेंट, k हमारा क्या है 1 अपॉन k स्क्वायर, हमारा क्या है 1 अपॉन lc। तो हम सर्किट में क्या इंडक्टर की वैल्यू ले रहे हैं, क्या कैपेसिटर की वैल्यू ले रहे हैं, क्या हम टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल ले रहे हैं, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होगा। सो dx अपॉन dt इज नथिंग बट इक्वल टू dq अपॉन dt। ठीक है, सिमिलरली इसका जब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन का, तो क्या आएगा, d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2q ओवर dt स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन 25 है, ये अब बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई हो गई है। किस फॉर्म में, d2q ओवर dt स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करो d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस 2b dq ओवर dt क्या है हमारा dx अपॉन dt, उसको सब्स्टिट्यूट करो प्लस k स्क्वायर, इस ब्रैकेटेड टर्म को हमने x लेट किया था, तो प्लस k स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन फर्दर सिंप्लीफाई हो गई। और इक्वेशन नंबर 24 को पहले हमने सिंप्लीफाई करके लिखा एज इक्वेशन 25, फिर इक्वेशन नंबर 25 को हमने फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखा एज इक्वेशन नंबर 26, which is d2x over dt square plus 2b dx over dt plus k square x is equal to 0. So this is a second order differential equation. Now let इसका जो solution है, the trial solution of this equation is x is equal to e raised to power alpha t. ठीक है, हम ये सोच रहे हैं कि लेट्स से इसका जो ट्रायल सोल्यूशन है वो ये है, x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर अल्फा t। अगर देखो हमें x मिल गया, इक्वेशन नंबर 26 से अगर हमें x मिल गया, तो x को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी एज q माइनस e अपॉन के स्क्वायर l, तो मुझे q मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने x सॉल्व कर दिया तो मुझे q की वैल्यू भी मिल जाएगी, जो हमारा फाइनली जो हमें निकालना है। ठीक है, तो लेट्स से ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 26, इसका जो ट्रायल सॉल्यूशन है, लेट इट बी x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर अल्फा t। देखो अगर ये इसका सॉल्यूशन होता है, दैट मींस इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, dx ओवर dt निकालेंगे, d2x ओवर dt स्क्वायर निकालेंगे और इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 26, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर अल्फा t इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और ये तुम सबको पता है ये चीज जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो dx ओवर dt क्या होगा, डिफरेंशिएट दिस एक्सपोनेंशियल अल्फा इनटू e रेज़ टू पावर अल्फा t, एंड d2x ओवर dt स्क्वायर क्या होगा, अल्फा कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर अल्फा t का डिफरेंशिएशन होगा अल्फा इनटू e रेज़ टू पावर अल्फा t। So d2x over dt square becomes alpha square e raised to power alpha t. Now substitute these values in the equation number 26. So d2x over dt square हो गया alpha square e raised to power alpha t plus 2b dx over dt होगा alpha e raised to power alpha t। देखो यहाँ सबस्क्रिप्ट में e लिखा हुआ है, ये गलत है, ये अल्फा के साथ मल्टीप्लाइड है और एक्सपोनेंशियल के ऊपर है अल्फा टी, मतलब ये वाली जो टर्म है ना, ये है यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेना अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में। प्लस
k स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट x एज e रेज टू पावर अल्फा t इक्वल टू 0। ठीक है, तो तीनों साइड e रेज टू पावर अल्फा, तीनों टर्म्स में e रेज टू पावर अल्फा t आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम ड्रॉप कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। और हमारे पास क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। Alpha square plus 2b alpha plus k square equal to 0. Now what is this now? This is the quadratic equation in alpha. हमारी quadratic equation होती है ना ax square plus bx plus c equal to 0. फिर उसका solution या उसके roots हम कैसे निकालते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या होंगे अल्फा के, माइनस बी, बी हमारा क्या है 2b, तो माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है यहाँ पे 2b, तो बी स्क्वायर क्या हो गया 4b स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है 1, c क्या है k स्क्वायर, तो माइनस 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है 1 है तो 2। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला लगाया है, सबको पता है, मैं इसको एक बार लिख भी देती हूँ अगर तुम्हें लग रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a. Okay, you all are familiar with this formula. These are basically the roots of a quadratic equation. कौन सी quadratic equation, ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x, ये उसके रूट्स हैं, x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे यूज किया है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा। तो इसके जो रूट्स हैं हमारे वो ये हो जाएंगे ना, ये जो स्क्वायर रूट है इसमें से वी कैन टेक 2 कॉमन, 2 जो है वो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। ठीक है, तो ये हो, और नीचे भी डिनोमिनेटर में 2 है तो वो कैंसल आउट होगा, तो अल्फा हमारा आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा के जो है हमें दो रूट्स मिल गए बाय सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स हमारा क्या है e रेज़ टू पावर अल्फा टी, और अल्फा की जो है हमें दो वैल्यूज मिली हैं। इसका मतलब तो जनरल सोल्यूशन है इक्वेशन 4.26 का, 4.26 का फाइनली हमें सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, दैट मींस x का हमें सोल्यूशन मिल गया, अल्फा की 2 वैल्यूज है, तो x हमारा क्या होगा a इंटू ई रेज टू पावर अल्फा की 1 वैल्यू प्लस b ई रेज टू पावर अल्फा की अनदर वैल्यू इंटू t। So x is equal to a e raised to power minus b plus under root b square minus k square into t plus b into e raised to power minus b minus under root of b square minus k square into t। ठीक है, एक वैल्यू दो रूट्स है ना यहाँ पे, देखो प्लस माइनस है, एक है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एक है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इस टाइप की चीजों से, इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके से तुम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो, मैथ्स में इस टाइप की चीजें तुम लोग करते रहते हो। ठीक है, तो अब हमें क्या है, अब हमें इक्वेशन नंबर 26 का सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, बट स्टिल अभी भी क्या अननोन है, ये a और b की वैल्यूज। तो अब हमें क्या करना होगा, a और b की वैल्यूज निकालनी होगी, तो उसके वो हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम इस x को q के टर्म्स में लिख दें तो फाइनली हमारे पास चार्ज की इक्वेशन आ जाएगी। x हमारा क्या है q माइनस ई अपॉन के स्क्वायर एल, तो q हमारा क्या हो गया x प्लस e upon k square l. Now substitute the value of x from equation number 27 to this equation.
तो Q मेरे पास आ गया a इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस ई अपॉन के स्क्वायर एल। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर को हमने क्या लेट किया था 1 अपॉन एल सी, तो एल कैंसिल आउट होगा और ऊपर सी आ गया, तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई, Q इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस ई इंटू सी। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ तक हमने जो क्या किया था वो मैं उसको थोड़ा सा तुम लोगों को समराइज कर देती हूँ। हमने ये किया, सबसे पहले हमारे पास टोटल इक्वेशन थी E इज इक्वल टू ई एल प्लस ई आर प्लस ई सी, वहां पे हमने ई एल ई आर और ई सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, फिर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई इन टर्म्स ऑफ Q। हमें फाइनली क्या करना है, इस Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस Q की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन हमने किया था, जो हमारा r अपॉन एल था उसको 2b लेट किया और 1 अपॉन एल सी को k स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 25। फिर उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन किया, लेट x इज इक्वल टू q माइनस e अपॉन k स्क्वायर एल। फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर 26 आई, d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस 2b इंटू dx ओवर dt प्लस k स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। फिर इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन किया, लेट x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा टी। फिर अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने इसको पुट किया इन इक्वेशन नंबर 26 और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई अल्फा के टर्म्स में। तो अल्फा की हमें दो वैल्यूज मिल गई। नाउ x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा टी है, अल्फा की हमें दो वैल्यूज मिल गई। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 26 का जो जर्नल सोल्यूशन है, इट कैन बी रिटन एज द इक्वेशन नंबर 27। Now, after substituting x in terms of Q, that is x is equal to Q minus E upon K square L, we finally got the value of Q. अब हमें ये Q की वैल्यू मिल गई, जिसमें अब हमें कैपिटल A और कैपिटल B जो है इसकी वैल्यूज निकालनी होंगी और इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, इनकी वैल्यूज निकालने से पहले सबसे पहले ये चीज देखो, ये जो EC है इसको वी कैन राइट एज Q नॉट, वेयर Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज एक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर। हमने क्या बोला था, जैसे ही हम की को प्रेस करेंगे करंट फ्लो हो करेगा सर्किट में और कैपेसिटर जो है इट विल स्टार्ट गेटिंग चार्ज्ड। तो कैपेसिटर चार्ज होगा फ्रॉम द मिनिमम टू द मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड लेट्स से द मैक्सिमम वैल्यू इज Q नॉट। तो लेट्स से EC इज इक्वल टू Q नॉट। अब ये कहाँ से आया हमारे पास, ये यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में ही अगर हम देखें, ठीक है, एट Q इज इक्वल टू Q नॉट, मतलब जो हमारा चार्ज जो है मैक्सिमम हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा। दैट मीन्स इट हैज बिकम कांस्टेंट, नाउ इट हैज बिकम मैक्सिमम। ठीक है, और सबको पता है करंट क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, करंट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, dq ओवर dt। अगर हमारा चार्ज मैक्सिमम हो गया Q नॉट, दैट मीन्स इट बिकम्स कांस्टेंट। तो मैक्सिमम चार्ज Q नॉट का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, it will become 0 since Q naught is constant. Now substitute this thing in this equation. I जो है हमारा वो 0 है, Q हमारा Q naught है। ठीक है, I अगर 0 है तो di over dt भी 0 होगा। तो E मेरे पास, तो ये टर्म भी चली गई, दिस इज 0 दिस इज 0। ठीक है, Q नॉट के इक्वल है, तो E मेरे पास क्या आ गया, Q नॉट अपॉन C। दैट मीन्स EC is equal to Q नॉट। So this is how we get this term EC is equal to Q naught, since at Q is equal to Q naught, that is the maximum charge acquired by the capacitor, it becomes constant and the current then becomes 0, since the differentiation of a constant quantity is always 0 and current is dq over dt. ठीक है, तो this equation को I can now write as Q is equal to A into e raised to power minus B plus under root of B square minus K square into T plus capital B into e raised to power minus B minus under root B square minus K square into T plus Q naught.
ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू अगर हमने निकाल ली तो हमारे पास फाइनली चार्ज की एक्सप्रेशन आ जाएगी जो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन, कि जब हमारा एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब हमने की को प्रेस किया उस टाइम पे टी जो है हमारा 0 है। ठीक है, इनिशियली जब एट टाइम टी इक्वल टू 0 जो चार्ज है कैपेसिटर में वो 0 है। ठीक है, और जो करंट है वो भी हमारा 0 है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ करेंगे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखो हमारे पास दो अननोन्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी है, दो कांस्टेंट्स की वैल्यूज हमें निकालनी है। सो वी नीड टू इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो पहली इक्वेशन हमें मिलेगी फ्रॉम द फर्स्ट इनिशियल कंडीशन कि एट t इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू 0 हियर। सो एट t इक्वल टू 0 q हमारा 0 है, तो 0 इज इक्वल टू a इनटू e raised to power 0, e raised to power 0 is 1, so a plus b into e raised to power 0 is again 1 plus b plus q naught. So we get the first equation in terms of a and b. A plus b is equal to minus q naught. Using the initial condition at t equal to 0, q is equal to 0. Now we'll find the second equation in terms of a and b using the another initial condition कि at t equal to 0 I is also 0। तो I हम कैसे निकालेंगे? differentiate this equation number 28 with respect to time। तो current हमारे पास आ गया dq over dt is equal to a into e raised to power at है ना ये एक तरीके से, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया a into e raised to power at। a हमारा क्या है? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू द एक्सपोनेंशियल टर्म प्लस b into this term into e raised to power minus b minus under root b square minus k square into t। ठीक है, q naught हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। so substitute this initial condition in this equation, I is equal to 0 at t equal to 0। so 0 is equal to a into ये bracketed term as it is रहेगी और e raised to power 0 1 हो गया plus b into this bracketed term and e raised to power 0 is 1। नाउ हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक हमारे पास ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, एक हमारे पास ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इस इक्वेशन को आई कैन राइट एज माइनस बी इंटू माइनस बी, अगर मैं कॉमन लूंगी तो मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को आई कैन राइट एज दिस। एक माइनस बी हमने कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी आ गया, फिर हमने कॉमन लिया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ गया a माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू 0। नाउ a प्लस बी हमारा क्या है? माइनस क्यू नॉट। सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, तो ये हो गया b इंटू क्यू नॉट plus under root b square minus k square into a minus b equal to 0. So this gives a minus b equal to minus b q naught divided by under root of b square minus k square। यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली जो है तुम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि ठीक है कि ये इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, a plus b is equal to minus q naught and a minus b is minus b q naught upon under root b square minus k square। तो अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से we can find the values of a and b। तो first we'll do the addition of these two equations। One is equation number 29, another one is equation number 31। दोनों को जब हम ऐड करेंगे we'll get the value of a। ठीक है, तो a मेरे पास क्या आ गया? a मेरे पास आया माइनस क्यू नॉट अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारा क्या आया, बाय एडिंग दी टू इक्वेशंस 29 एंड 31। अपने बुक में इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया, ये 2a इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट माइनस बी इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। क्यू नॉट को अगर मैं कॉमन लूंगी, इसमें माइनस क्यू नॉट को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2a है तो a हमारा क्या आ गया, माइनस क्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। खुद से सॉल्व करके देखोगे इसको तो भी तुम्हें समझ में आएगा कि यही इक्वेशन आएगी, ठीक है। और खुद से सॉल्व करके देखोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, खुद से सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Now next, after finding the value of this constant capital A, we will now find the value of the capital B. कैपिटल B की वैल्यू निकालने के लिए we have to subtract these two equations, और हमारे पास कैपिटल B जो है वो आ जाएगा माइनस क्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 1 माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर. This we'll get after subtracting the equations 29 and 31. So we got the values of capital A and capital B. Now substitute these two values in the equation number 28 in this equation, and finally we'll get the final expression for the charging of capacitor in a LCR circuit. तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ गई, Q इज इक्वल टू A को सब्स्टिट्यूट करो, माइनस क्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी, प्लस b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, माइनस क्यू नॉट अपॉन 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, आउटसाइड दी ब्रैकेट्स ले लिया क्योंकि वो a में भी आ रहा है b में भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू टी प्लस क्यू नॉट. So this is the final general expression representing the charging of a capacitor in LCR circuit. तो आज हमने क्या किया, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसीआर सर्किट जो है उसको किया, जिसमें हमने जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करी Q की, दैट इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसीआर सर्किट, ठीक है। अभी भी हमारा जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो बाकी हैं, और ये चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, एक बार ब्रीफली रिवाइज समराइज कर रही हूँ, इस इक्वेशन का यूज करके हमने फाइनली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी इन टर्म्स ऑफ Q, फिर हमने सब्स्टिट्यूशंस करे R अपॉन L इक्वल टू 2B एंड 1 अपॉन LC इज इक्वल टू K स्क्वायर, और हमारे पास इक्वेशन आई 25, फिर हमने पुट किया x इक्वल टू Q माइनस E अपॉन K स्क्वायर L एंड वी गेट अ फर्दर सिंप्लीफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, फिर हमने इसका ट्रायल सोल्यूशन लेट किया, लेट x इज इक्वल टू e रेज टू पावर अल्फा t, फिर अगर ये इसका सोल्यूशन है देन इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो वहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली अल्फा के टर्म्स में, तो हमें अल्फा की दो वैल्यूज मिल गई जिससे हमें x का जनरल सोल्यूशन मिल गया, और यहाँ पर a और b हमारे पास दो कांस्टेंट्स आए जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी थी, तो इनकी वैल्यूज निकालने से पहले हमने x को q के टर्म्स में लिखा और फिर हमने AC को Q नॉट सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन नंबर 28 आ गई, जिसमें हमें कैपिटल और कैपिटल B की अगर वैल्यू मिल जाती है तो हमें Q की जर्नल एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो इस कैपिटल और कैपिटल B की वैल्यूज हमने निकाली बाय यूजिंग दी टू इनिशियल कंडीशंस. First initial condition is at t equal to 0, Q is 0. Second initial condition is at t equal to 0, current I is also 0. तो हमारे पास दो इक्वेशंस आई, a plus b is equal to minus q naught and a minus b is equal to minus b into q naught upon under root of b square minus k square.
फिर इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से वी ऑब्टेन्ड द वैल्यूज ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। फिर इनकी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया इन इक्वेशन नंबर 28। ठीक है, इन दिस इक्वेशन वी सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। So finally we obtained the equation number 32, which is the general expression representing the charging of capacitor in LCR circuit. अब यहाँ तक हमने डेरिवेशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम 3 स्पेशल केसेस देखेंगे ना। ये डेरिवेशन इनकम्प्लीट क्यों है? देखो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल में टर्म आ रही है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और के स्क्वायर की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि ये जो सोल्यूशन है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, ऑसिलेटरी है, इंक्रीजिंग है, किस टाइप का सोल्यूशन है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग सोल्यूशन है, ऑसिलेटरी सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन है। फाइनली हमें निकालना तो वही है, जैसे हमने एलआर सर्किट में देखा था कि during the growth of current it is exponentially increasing, during the decay it is exponentially decreasing। RC में हमने देखा था charge is exponentially increasing and then it is exponentially decreasing during discharging। फिर हमने LC में देखा था charge जो है it is having the oscillatory kind of behavior, it is showing undamped simple harmonic oscillations। ठीक है, तो अब यही चीज हमें यहाँ पे भी चेक करनी होगी, तो वो हमें पता चलेगा इसके से कि बी स्क्वायर और के स्क्वायर का क्या रिलेशन है। देखो, इफ बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर, फर्स्ट केस क्या होगा, अगर बी स्क्वायर के स्क्वायर से ज्यादा है तो इन दैट केस दिस स्क्वायर रूट इज रियल एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। अगर बी स्क्वायर के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, तो उस केस में ये जो स्क्वायर रूट की टर्म है ये हमारी 0 हो जाएगी। पर यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में, तो अगर बी स्क्वायर के स्क्वायर के इक्वल हो गया तो सोल्यूशन तो इन्फिनिटी हो गया। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि व्हेन बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, वी विल से व्हेन बी स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू के स्क्वायर, क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल अगर हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सेकंड केस क्या है, व्हेन बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, हियर वी विल से दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 बट इट इज इक्वल टू अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लेट्स से h, क्योंकि अगर एग्जैक्टली इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो गया तो सोल्यूशन इन्फिनिटी हो गया। थर्ड केस क्या होगा, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब बी स्क्वायर हमारा लेस देन के स्क्वायर है, उस केस में जो हमारा स्क्वायर रूट है वो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस जो हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखेंगे। तो ये डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, बट इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंदी है, इसको ध्यान से समझोगी अगर तो ये समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी थोड़ी सी भी डाउट है तो जब हम डिस्चार्जिंग का केस करेंगे तो चार्जिंग वाला तुमको एग्जैक्टली जो है क्लियर हो जाएगा।